السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ کڑے وقت میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ صدارتی مکتوب میں پاکستانی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ امریکی صدر نے ماحولیاتی بہتری کے لیے اتحاد مزید مضبوط کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ امریکی صدر کا شہباز شریف کے نام پہلا خط، علاقائی مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا عزم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دینے کا وقت آ گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے عوام کے درمیان قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام سمیت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے۔ امریکی صدر نے پاک امریکہ شراکت داری امریکی عوام کی سلامتی کے لیے اہم قرار دے دی۔ مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے رٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے ہیں، بلوچستان کے عوام کا تحفظ آئینی ذمہ داری ہے۔ کا کم سے کم پتہ ہونا چاہیے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ریزنز کیا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیڈ گورننس کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ جب نوکریاں بکیں گی، جب ٹھیکے بکیں گے، جب کرپشن ہوگی تو وہ ان انسرجنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ ہم نے پیراڈائم جو ہے اس کا شفٹ کر دینا ہے گڈ گورننس کی طرف اور بہتر گورننس کی طرف۔ کمپلیٹلی شاید ہم سے نہ ہو سکے، ایٹ لیسٹ ہم کوئی ٹریک پہ چڑھ جائیں گے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کنسنسس ہوگا تو یہ چیز آسان ہوگی۔ اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ فرم انداز میں بٹ پولائٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے ود دا پرائم منسٹر آفس، ود پی این ڈی، ود ایوری ون، اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مرد آباد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے، اس کلچر کو ہم ڈسکریج کریں گے۔ پاکستان کو نئے پروگرام میں کتنا فنڈ ملے گا کچھ کہنا قابل از وقت ہے۔ آئی ایم ایف نے نئی حکومت کی جانب سے اہداف کی تکمیل سے متعلق کارکردگی جائزے کا ایک لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ ذرائع آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی اقتصادی پیش رفت حوصلہ افزا ہے، تاہم معیشت کو چیلنج اب بھی درپیش ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف ملاقات کی اندرونی کہانی، بول نیوز کی زبانی۔ ذرائع آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سیاسی مشکلات سے نمٹنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں سے پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے بات چیت جولائی میں کی گئی۔ پاکستان کو دیر پا شرح نمو درکار ہے۔ آئی ایم ایف کی تجاویز پر پاکستان نے عمل درآمد کیا ہے۔ ذرائع آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو قرضے کی واپسی سے متعلق معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ گردشی قرضے پر اگر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کو تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ اپریل میں ختم ہوگا۔ نئے آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات معاشی اہداف کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت معاہدوں پر بات نہیں ہوئی۔ ممبر ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر آئی ایم ایف بات نہیں کرتا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسان کارڈ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں زرعی اصلاحات کے لیے خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کسان کارڈ اور زرعی شعبے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام، کسانوں کی بھلائی کے لیے کیا بڑا کام۔ نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ کسان کارڈ کے ذریعے 5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان اقساط پر ایک سال میں 150 ارب روپے قرضہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کسان کارڈ کے ذریعے مختلف اقساط کی سبسڈی بھی دی جائے گی۔ پنجاب بھر میں نجی شعبے کے اشتراک سے ماڈل ایگریکلچر سینٹرز بنائے جائیں گے۔ ماڈل ایگریکلچر سینٹرز پر جدید زرعی مشینری، ٹریننگ، پیسٹی سائڈ بیج اور نمائشی پلاٹ بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب میں زرعی اصلاحات کے لیے دوسرے خصوصی اجلاس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پنجاب ایگری ریسرچ بورڈ کی تشکیل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چین کے تعاون سے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں 2 ارب کی لاگت سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری تقریبات میں پروٹوکول کے لیے سرخ قالین پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم نے پروٹوکول کے لیے سرخ قالین پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف سفارتی تقریبات میں پروٹوکول کے سرخ قالین کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ پاکستان نے ایک بار پھر بڑا دل دکھایا۔ غیر ملکی سفیروں کے لیے رکھی گئی افطار دعوت میں بھارتی سفیر کو بھی بلایا۔ بھارت نے روایتی ہمدردی دکھائی۔ بھارت نے تمام تر سفارتی آداب کو پس پشت رکھتے ہوئے شرکت سے صاف انکار کر دیا۔
की आस भारत को न आई रास। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया, भारत को एक आंख न बाया। वजीर खजाना इसहाक डार ने दफ्तर खारजा में वजीर आजम और गैर मुल्की सफीरों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। दावत में दीगर ममालिक के सफीरों के साथ भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी मदऊ किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर ने मुखासमाना रवैया अपनाते हुए तमाम तर सिफारती आदाब को पसे पुश्त डाल दिया। दावत इफ्तार में शिरकत से साफ साफ इनकार करके भारतीय बुग़्ज़ को अयां कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय सिफारतकारों की इफ्तार डिनर में अदम शिरकत सिफारती रिवायात के खिलाफ है। भारत ने अदम शिरकत पर अभी तक माजरत या तसफ का खत भी नहीं भेजा। डिप्लोमेटिक कोर के लिए आखिरी इफ्तार डिनर 2022 में उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया था, जिसमें भारतीय सिफारतकारों ने शिरकत की थी। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब। हल्का NA 207 पर रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अली शेर जमाली ने फॉर्म 34 जारी कर दिया। फॉर्म 34 के मुताबिक आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला कामयाब हो गई। आसफा भुट्टो जरदारी समेत 4 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 3 उम्मीदवार आसफा भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। NA 207 पर PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिन समेत 7 अफराद के कागजात मुस्तरद हुए थे। हल्का NA 207 की नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी को बिला मुकाबला कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद का तांता लग गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पार्टी की सूबाई क़यादत ने तहनीती पैगामात में दुख्तर बेनज़ीर भुट्टो को कानून साज इदारे का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन, रहनुमा पीपल्स पार्टी इम्तियाज शेख, कोयटा के कम उम्र तरीन MNA नवाबजादा जमाल खान रईसानी और डिप्टी मेयर कराची की जानिब से भी आसिफा भुट्टो को मुबारकबाद दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद छोड़ी हुई सीट पर बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। रवा माह महंगाई 22.5 से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान है। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक ने आइंदा माह महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आने लगी। आउटलुक ने मुल्क में महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां बरस डॉलर रेट में 5 रुपए 54 पैसे कमी से डॉलर 278 रुपए पर आ गया। रमजान रिलीफ पैकेज 7 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर्स की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज अच्छा मगर इख्तिताम मुनासिब न रहा। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी गिरावट जारी रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में शिरकत की और रिवायती घंटी बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी मंदी में तब्दील। 100 इंडेक्स 67,000 की सतह से नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 118 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 67,274 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 278 रुपए 3 पैसे से कम होकर 277 रुपए पर ट्रेड हुआ। 277 रुपए 80 पैसे पर आ गया। कराची में जुर्म थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन महफूज है ना ही रात। शहरियों को हर वक्त मौत का खौफ है। डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब डिलीवरी बॉय अली रहबर को कत्ल कर दिया गया, जिसका मुकदमा शारे फैसल पुलिस ने दर्ज कर लिया। नाज़माबाद में शहरी ने डकैतों की लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने शहरी को लूटने की नीयत से असलहा दिखाया तो शहरी ने बहादुरी के साथ मुलजिम को असलहे समेत धर लिया। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कराची में जराइम के हवाले से। दिन महफूज है ना रात। शहरियों को हर वक्त मौत का खौफ डराने लगा। डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब डिलीवरी बॉय अली रहबर को कत्ल कर दिया गया, जिसका मुकदमा शारे फैसल थाने ने दर्ज कर लिया। नाज़माबाद में शहरी ने डकैतों की लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी को लूटने की नीयत से असलहा दिखाया तो शहरी ने बहादुरी के साथ मुलजिम को असलहे समेत धर लिया। एक डाकू फरार, दूसरे को शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। DG रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें कराची में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया गया। जबरी फितरा वसूली पर
कड़ी नज़र रखने की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान यौम अली, ईस्टर, रमज़ान का आखिरी अशरा, चांद रात और ईद उल फितर की मुनासबत से खुसूसी सिक्योरिटी लाहे अमल मुरतब हुआ। टोबाटेक सिंह में लड़की ने बेईमाना कत्ल केस में गिरफ्तार बाप भाई का 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। बाप ने कत्ल से इनकार कर दिया, कहा बेटे ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। नामालूम अफराद की शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। टोबाटेक सिंह में ये वाक़या 17 से 18 मार्च के दरमियान पेश आया और रिपोर्ट 24 मार्च को हुआ। टोबाटेक सिंह में लड़की का बहमाना कत्ल, अदालत ने मुल्ज़मान का 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। मरकजी मुल्जिम फैसल और बाप अब्दुल सत्तार को मकामी अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बाप ने कत्ल से इनकार कर दिया, कहा बेटे ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। मरकजी मुल्जिम ने इल्जाम लगाया भाई शहबाज बहन के साथ गलत फेल करता था, शहबाज को गिरफ्तार किया जाए, इस्तदा की नामालूम अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाए। क्यों मारे तू अपनी बेटी ने क्यों मारे? वीडियो क्या बेटे ने मारा, बेटे ने क्यों मारा? वजह की हुई? समाज के बारे में मारा। क्यों मारा भाई? जना कर दे रहे जना कोदे नाल? हां जी, अपनी भैन नाल। हां जी, तेन शर्म नहीं आई? अफसोसनाक वाकया 17 से 18 मार्च के दरमियान पेश आया और रिपोर्ट 24 मार्च को हुआ। मंजर आम पर आने वाली वीडियो में भाई और बाप को घिनौना जुर्म करते देखा जा सकता है। मारिया का भाई शहबाज केस का मुद्दई है। खबर दें आपको, कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। खातून ने बताया कि मुल्जिम ने इंटरव्यू के बहाने बुलाया और ज्यादती की। मुझे धमकियां दी गईं, कहा मेरा वालिद पुलिस का आला ऑफिसर है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मुल्जिम जमानत पर है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। गन पॉइंट पे उसने रखा और फहद ने मेरे साथ जना किया। कराची में एक और मजबूर लड़की ज्यादती का शिकार, नौकरी का झांसा दिया, इज्जत कर दी तार तार। गुलिस्तान जौहर में खातून को नौकरी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना दिया गया। मुल्जिम ने इंटरव्यू के बहाने बुलाया और ज्यादती की। मुल्जिम फहद कहता था कि उसका वालिद पुलिस का आला अफसर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मुतासरा खातून की आला हुक्काम से इंसाफ और मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी की अपील। तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि वाक़ये का मुकदमा थाना शार फैसल में मुतासरा खातून की मुद्दत में चंद रोज पहले दर्ज किया गया था। ज्यादती और असलहे के जोर पर कत्ल की धमकी की दिफात शामिल हैं। खातून के कपड़े और दीगर शवाहिद सील कर दिए गए हैं। मुल्जिम जमानत पर है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। लिया में थाना सिटी की हुदूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जहनी माजूर बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। मुल्जिम की बच्ची को अस्पताल से वरगला कर ले जाने की CCTV फुटेज सामने आ गई। 15 साल अबरार अस्पताल में फेरी का काम करने के बहाने आया और बच्ची को टॉफियां देकर वरगला कर ले गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबे में अमन और अमान की मखदूश सूरत हाल का नोटिस ले लिया है। एक बयान में कहा है कि हालात का जायजा लिया जा रहा है। IG सिंध को मुलाकात में सिक्योरिटी डबल करने की हिदायत की है। इसके साथ SSPs को पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए रेंजर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। विफाक को खत लिखूंगा कि जराइम के दौरान जानी नुकसान की रोकथाम के लिए इकदाम करे। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के सैयद अली नासिर रिजवी को नया IG इस्लामाबाद तैनात कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 3 साला अनाया फारूक की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। कमसन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया फारूक का ज़ाती खर्च पर इलाज कराया। अनाया फारूक के दिल की कामयाब सर्जरी के बाद नवाज शरीफ खुद पहुंच गए और ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आप कैसी हो, ठीक हो ना आप? माशाल्लाह। नवाज शरीफ की नन्ही अनाया से गुफ्तगू। अनाया देखो बब्बर शेर आपसे मिलने आया है। खुशी से अनाया की वालिदा की आवाज़ भर गई। क्या हाल है? आप अच्छी हो? अच्छी है? आप अच्छी हो? हाँ ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका?
अच्छी हो ना, अच्छी हो ना। बब्बर शेर है। ज्यादा सलामत रखती है आपको भी। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया है। FBI महसूलात जो अदलिया को अगर अहम इशूज़ से फरागत हो तो तवज्जो की मुस्तहिक़ हैं। मंदरजा ज़ेल रकूम अदालती कार्रवाई में सालों से फैसलों की मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट 102 अरब, हाई कोर्ट 742 अरब, ट्रिब्यूनल 1700 अरब में कोशिश में हूँ कि पता चले कि सिलसिला कब से है। कई साल पहले मैंने PAC ये मसला उठाया था मगर FBR ने ज़्यादा लिफ्ट ना कराई। ये सब FBR टैक्स नादहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकता है। सर्विसेज अस्पताल के इंतजामी ओहदे पर करप्शन, रिश्वतखोरी और लूटमार का इंकशाफ। साबिक MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक का ओहदे के नाजायज इस्तेमाल करने का इंकशाफ। डॉक्टर मुनीर मलिक ने बतौर MS किकबैक की खातिर बिला जवाज सर्जिकल ग्लव्स खरीदे। डॉक्टर मुनीर मलिक ने 8,61,60,000 के ग्लव्स महंगे दामों खरीदे। जबकि इस बारे में रिपोर्ट बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आई है। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है। आपको बता रहे हैं कि इस वाक़े से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है। सर्विसेज अस्पताल के इंतज़ामी ओहदे पर करप्शन की गई है। रिश्वतखोरी और लूट मार का इंकशाफ हुआ है। साबिक MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक का ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर मुनीर मलिक ने बतौर MS किकबैक की खातिर बिला जवाज सर्जिकल ग्लव्स खरीदे। डॉक्टर मुनीर मलिक ने 8,31,60,000 के ग्लव्स महंगे दामों खरीदे। इस बारे में रिपोर्ट बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया है। बात करेंगे गजा की, जहां इस्राएली मजालिम थम न पाए। सहूनी फौज की रफा खान यूनुस शुजाइया पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 32,500 से तजावुज़ कर गए, जिनमें 14,000 बच्चे शामिल हैं। 36 अस्पतालों में 2/3 से ज़ायद अस्पताल गैर फ़ाल हो चुके हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में क़हत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। इसराइल ने भूख को भी हथियार बना लिया। बसरिया कहत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने लगा। भूख से जाबाक बच्चों की तादाद 27 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार भी एतराफ़ कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर वॉल्कर ट्रक ने कहा, ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं जिनसे साबित होता है कि इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील को रोका जा रहा है या इस अमल को सुस्त किया जा रहा है, जिससे लगता है कि इसराइल गज़ाई किल्लत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। साबित होने पर यह जंगी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि गज़ा में बिला रोक टोक इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ऐसे में नेतन्याहू रफा पर हमले के लिए बसद है। मुफ्तियों के अहले खाना के नाम पैगाम में कहा, सिर्फ फौजी कुव्वत से ही यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सकती है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मगासी कैंप पर हमला करके 8 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने शाम के साथ छेड़छाड़ भी शुरू कर दी। हल्ब पर हमले करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला को हमले के बारे में अब तक की गई तहकीकात और तफसीलात से आगाह किया गया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। और खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। PCB ने बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। बोर्ड जल्द ही इसका बाकायदा ऐलान करेगी। जबकि ज़राए के मुताबिक बाबर आजम उम्रे की अदायगी के बाद काकुल अकेडमी में जारी ट्रेनिंग सेशन को बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड थिंक टैंक से मुशावरत मुकम्मल। PCB के बड़े T20 की क़यादत तब्दील करने पर यकसू। सेलेक्टर्स ने बाबर आजम को पेशरफ्त के हवाले से ऑन बोर्ड ले लिया।
चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात में स्टार क्रिकेटर के बोर्ड से मामलात तय पा गए। दूसरी जानिब मौजूदा टी20 कप्तान शाहीन आफरीदी के लिए ऑप्शंस महदूद। हालात से दिल बर्दाश्ता, शाहीन का कप्तानी से दस्तबरदारी का फैसला। करीबी दोस्तों और रफका के मशवरे पर प्लान तब्दील कर दिया। बोर्ड के बाकायदा ऐलान से कबल अपने जज्बात के इजहार का आइडिया ड्रॉप कर दिया। जराये के मुताबिक बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस की सीरीज में क़यादत संभालेंगे। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 टी20 में 42 जीते और 23 हारे। और भारतीय खातून क्रिकेटर पूजा विस्ट्राकर ने अपनी धमाका भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके अहलकारों को आईना दिखा दिया। गहरे तंज पर मबनी पोस्ट भारतीय खातून क्रिकेटर ने बाद में डिलीट कर दी। मुल्की वसाइल पर दबाव से काबिज मोदी और उनका टोला। भारत में करोड़ों अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, फुटपाथ ही जिनका मस्कन। ये सब देखकर भारतीय विमेन प्लेयर ज़मीर की आवाज को दबा नहीं सकी। भारतीय खातून क्रिकेटर का मास्टर स्ट्रोक, मोदी और उसके टोले को आईना दिखाया। भारतीयों पर टैक्सेस की भरमार करने पर पूजा ने मुल्की वज़ीर-ए-आज़म पर गहरा तंज कर दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट में मोदी और उसकी पार्टी लीडरशिप और काबीना के अहम अरकान को वसूली टाइटन्स करार दे दिया। पूजा ने पोस्ट करके अपने हिस्से का काम कर दिया। भारतीयों को एहसास दिलाया कि मोदी के दावे सिर्फ इलेक्शन मुहिम तक हैं। पोस्ट ने जलती पर तेल का काम किया। बीजेपी का दबाव था या हुक्मरानों से गठजोड़ करने वालों की धमकी। पूजा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। पाकिस्तान टीम के लिए रेड और वाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस के लिए पीसीबी ने जहन बना लिया। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल क्रिकेट के मामलात की जिम्मेदारी संभालेंगे। जैसन क्लेप्सी खेल की तवील तर्ज में ग्रीन कैप्स के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान टीम को जीत के ट्रैक पर वापस लाने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रेड और व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक साबिक जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट का महाज संभालेंगे। जैसन गिल्स्पी टेस्ट क्रिकेट में ग्रीन कैप्स की रहनुमाई करेंगे। पीसीबी जल्द ही इस हवाले से सिचुएशन क्लियर कर देगा। गैर मुल्की कोचेस की तैनाती पर तूफान उठ खड़ा न हो, पीसीबी ने अपना प्लान रेडी कर लिया। मुकामी कोचेस की खिदमात से भी इस्तेफादा करने पर इत्तफाक, ताकि पाकिस्तानी कोचेस न रखने के हवाले से होने वाली मुमकिना तनकीद को कम किया जा सके। और अब बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। तो फैसलाबाद में ईद की शॉपिंग में तेजी आ चुकी है। खवातीन अपने पसंद के कपड़े खरीदने में मसरूफ है। दुकानदारों ने रेडीमेड फैंसी कपड़ों और इसके अलावा नेट वाले 3 पीस सूट समेत तरह तरह की वैरायटी का स्टॉक सजा दिया है। गाहक हाथों हाथ खरीद रहे हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। फैसलाबाद में ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। जूं ईद करीब आ रही है, ईद की शॉपिंग में तेज़ी आती जा रही है। यही वजह है कि हमने देखा है कि शहर के जो तजारती मराकज़ है, वहाँ पर जो शॉप्स हैं कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की, रेडीमेड्स कपड़ों की, वहाँ पर शहरियों का रश नज़र आ रहा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं सर कौन कौन सी वैरायटी दुकान में मौजूद है और किस रेंज में है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की वैरायटी मौजूद है। रेडीमेड की भी है, अनस्टिच की भी है, लॉन की भी मिल जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास तकरीबन 1500 से शुरू हो गए ना 10,000 रुपये तक रेंज होती है हमारे पास। रेडीमेड की रेंज है तकरीबन 2500 से शुरू हो गए ना 5000 तक रेडीमेड की रेंज है। जी बिल्कुल, दुकानदारों ने तो भरपूर अपनी तैयारी की हुई है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे शहरी जो है अपनी पसंद के मलबूसात के साथ। और हैदराबाद में कांच की नरमो नाजुक चूड़ियों पर इंतहाई नफासत के साथ नाम भी लिखे जाते हैं। ईद समेत खुशी के मौके पर खवातीन नाम वाली चूड़ी को अपनी कलाइयों की जीनत बनाती हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान राय। हैदराबाद के बाजारों में यूं तो नित नए और दिलकश डिजाइन की चूड़ियां दस्तयाब हैं। इसके बावजूद नाम वाली चूड़ी की अहमियत बरसों से अपनी जगह बरकरार है। यही वजह है कि ईद पर इसकी तलब दुगनी हो जाती है। जब से महंगाई हुई है तो हर चीज़ में मुश्किलात हो गई हैं। एक दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ चूड़ी है। ये दुनिया के किसी हिस्से में भी नाम नहीं लिखा जाता और यहाँ से नाम लिखने के बाद दुनिया के हर मुल्क में हर हिस्से में चूड़ी जाती है। यहाँ से कांच की चूड़ियों पर शीशे की रंगीन तारों को आग की मदद से गर्म करते हैं। कारीगर महारत और नफासत से चूड़ियों पर नाम कुंदा करते हैं। खवातीन अपने नाम की चूड़ियाँ बतौर फैशन कलाइयों की जीनत बनाती हैं। ये तो एक आर्ट है, हर कोई भी कारीगर मखसूस कारीगर हैं ये काम करते हैं और ये बहुत मेहनत तलब काम है नज़र का कि एक चूड़ी के ऊपर नाम लिखना आसान काम नहीं। और तो बहुत शौक से ये
नाम लिखी हुई चूड़ी पसंद करते हैं, इसलिए ये मुनफरिद आइटम है। कांच की चूड़ी पर नाम लिखने वाले हुनर से वाबस्ता अफराद की तादाद अब ना होने के बराबर रह गई। कांच की चूड़ी की सनत पर तवज्जो ना दी गई तो बहुत से हुनरमंद अफराद शोबे से किनारा कशी पर मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।